Good morning, students. How are you all? Welcome back once again. Today, your second video is going on. Today, I talking about some mass communication. Example for radio, television, newspapers, magazine, and other satellites and means of travel, just like traffic signals, road signals, etc. Modern means of communication. Means of mass communication is used to when many people are to be informed. Just like radio, television, newspaper, and magazines are different types of mass communication. What are the different types of mass communication? Radio, television, newspapers, and magazine, etc. are the types of mass communication. This message reaches the people in the country or the whole world even very soon. These are the modern means of mass communication. Okay, let's we go. Chambak's letter is a derivative to John 2 days after his birthday. So he could not attend Chambak's birthday party. His mother tells Chambak if he had invited John or phone, the message would have reached faster. चंपक का पत्र जॉन को उसके बर्थडे पार्टी के 2 दिन के बाद दिया जाता है, इसलिए वह चंपक के बर्थडे की पार्टी में शामिल नहीं हो सका। उसकी माम ने कहा कि अगर उसने जॉन को फोन पर आमंत्रित किया होता तो संदेश तेज से तेजी पहुंच जाता है। His mother tells Chambak if he had invited John over phone, the message would have reached faster. फोन पर बात करेगा तो जल्दी जल्दी उसको को मिल सकते थे। Chambak's mother tell him that the telephone is used to talk to friends. चंपक चंपक और मम्मी चंपक को फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानकारी दी। द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD facility can be used to talk to people in another state. Dear student, telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. टेलीफोन किसने आविष्कार खोज ले लिया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876 में टेलीफोन को आविष्कार किया। इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट उपकरण है। ऑन अ टेलीफोन वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव विद ए फ्यू सेकंड। एक सेकंड में अपन और किसी के फ़ोन कर सकता है। एक फ्यू सेकंड वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विद इन फ्यू seconds. The subscriber trunk dialing STD. STD, what is the full form of STD? Subscriber trunk dialing. STD facility can be used to talk to people some another person. एक स्टेट का अलग अलग स्टेट में बात करने के लिए अपन STD का इस्तेमाल करते हैं। The system is used to call places within the country. The international subscriber dialing ISD full form. The international subscriber dialing system is used to call places in another country. हम इंडिया से बाहर अलग अलग कंट्री से लोगों को बात करने के लिए अपन ISD
का इस्तेमाल करता है. It is used to call places in another country. We can send written message through a fax machine also. मम्मी को ज़्यादा पूछने लगा. मदर, आई हैव ऑल्सो सीन पीपल सेंडिंग रिटर्न मैसेजेस ओवर द टेलीफोन. हाउ डू दे इट? ऐसे पूछा कि माम, मैंने भी देखा कि लोगों ने टेलीफोन पर लिखित संदेश भेजते हैं. वह कैसे करते? मम्मी ने कहा, दिस डन बाय यूजिंग ए फैक्स machine which is connected to a telephone line, and already I may explain that we can send written message through the fax machine. This is done by using a fax machine which is connected to the telephone line. ये एक फैक्स मशीन का उपयोग करके किया जाता है जो एक टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है. A fax machine is used to send written messages, letters or even photographs. Fax messages can be sent instantly. ए फैक्स मशीन का उपयोग ऐसा होती है कि लिखित संदेश, पत्र या तस्वीरों भेजने के लिए किया जाता है. फैक्स संदेश तुरंत भेजे जा सकता है. I like the mobile phone. It is also easy to use. I like the mobile phone. It is so easy to use. मुझे मोबाइल फ़ोन पसंद है. एक उपयोग करना इतना आसान है. मम्मी ने कहा, yes, mobile phone can be carried anywhere. We can also use them to send messages using the short message services. मुझे मोबाइल पसंद है, एक उपयोग करना इतना आसान है. मम्मी ने कहा, हाँ, मोबाइल फ़ोन कभी भी अपन को ले जा सकता है. हम उन्हें शॉर्ट मैसेज सेवा का उपयोग करके संदेश भेजने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं. SMS, what is the full form of SMS? SMS short message services. Okay, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विसेज. ये मोबाइल इतना उपयोग करना इतना आसान है. मम्मी ने कहा, हाँ, मोबाइल कभी भी अपन को कई जगह में अपन ले जा सकता है. हमें उन शॉर्ट मैसेज सेवा का उपयोग करके संदेश भेजने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट, और भी पूछा, कंप्यूटर have made communication easier, faster and so much fun. कंप्यूटर ने संचार को आसान, तेज और इतना मज़ेदार बना दिया है. Dear students, computer is the latest means of communication which has brought about revolution is the computer. It has become popular means of communication, especially in the urban area. कंप्यूटर के बारे में इसको मम्मी को इन्होंने पूछा. कंप्यूटर ने संचार को आसान, तेज और इतना मज़ेदार बना दिया है. वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक. तुरंत मम्मी ने कहा, वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल थ्रू ए कंप्यूटर यूजिंग द इंटरनेट. हमें इंटरनेट का उपयोग करके कंप्यूटर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकता है. An electronic mail system is called email is available on the computer. Email can be sent and received using any computer in the world within a few seconds. And another is chatting is also possible on computer. Email and chatting is possible only due to availability of the internet on the computer. अपन कंप्यूटर में अपन चैटिंग कर सकता है. ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कंप्यूटर में अंदर अपन ले सकते हैं. आजकल
video conferencing is also possible these days. You can actually see the person to whom you are talking. Thus communication means have brought the world easier. कंप्यूटर में अपन नेट का उपयोग करके अपन वीडियो कॉन्फ्रेंस भी लग सकता है। मीटिंग अलग अलग तरीके से मीटिंग आजकल चलता है। ओके, इंटरनेट कंप्यूटर में जरूरी आवश्यकता है। ओके, इंटरनेट का उपयोग ऐसे ईमेल का कंप्यूटर को माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल भेज सकता है। तुरंत इसने और भी पूछा है, हाउ कैन वी सेंड ए मैसेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम? हम एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों को संदेश कैसे भेज सकते हैं? मम्मी ने कहा, वी कैन do it through newspapers, magazines, radios, and televisions. There are also some of the modern means of mass communication. Okay, we can do it through newspapers, magazines, radios, and televisions. They are some of the modes of mass communication. मैंने पहले भी कहा है, what is the type of means of modern mass communication? Radio, television, and न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एक्सेट्रा ऑल द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ओके, इन्होंने कहा समाचार पत्र और मैगज़ीन हमें हमारा देश और दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के बारे में खबरें देती है। ओके, here newspaper and magazine give us new about events that like take place in our country and around the world. हमको मनोरंजन करने के लिए टीवी एंड रेडियो का उपयोग किया जाता है और हमारे ज्ञान के समृद्ध करते हैं। एग्जाम्पल, हम नए स्थानों, खेल, सांस्कृतिक प्रोग्राम, डिफरेंट जानवरों को और पौधों के बारे में सीख सकती है। रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम certain and use enrich our knowledge. For example, we can learn about new places, sports, cultural events, different animal and plants. ओके, हम मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो एंड का उपयोग किया जाता है और हमारे ज्ञान के समुद्र करते हैं। एग्जाम्पल, हम नए स्थानों, खेल, we can learn about new places, sports, cultural events, different animals and plants, पौधों के बारे में सीख सकती है। ओके, मनोरंजन के लिए अपन ये भी इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज़पेपर आर द cheapest means of mass communication. They are read by all the people. They cover news from all the over the world in just 24 words. They provide us information in printed form. Okay. And television also is the most popular means of mass communication. Everybody loves to watch it. We hear and see the programs on अपन देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। Today we have many channel available on the television. टेलीविजन में बहुत तरीके से चैनल भी मिलती है, अपन देखती भी है। ये मनोरंजन के लिए अपन इस्तेमाल किया जाता है। Today we have too many channel available on the television. They also telecast live programs on अपन टीवी में अलग अलग लाइव प्रोग्राम भी हम देखती है। प्रोग्राम एग्जाम्पल क्रिकेट, फुटबॉल और अदर एक्टिविटीज आल्सो। चंपक मदर आल्सो टेल हिम अबाउट आर्टिफिशियल एक कृत्रिम उपग्रह के बारे में चंपक मम्मी इसने और जानकारी दिया। These are sent into space to revolve around the Earth like moon and send information. These satellites help to transmit radio and television programs instantly all over the world. कृत्रिम उपग्रह के बारे में जानकारी इसको दिया है। ये चंद्रमा की तरह अर्थ के चारों ओर घूमते हैं और जानकारी भी भेजते हैं। ये सैटेलाइट
रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स को दुनिया भर में तुरंत प्रसारित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रैवल। मीन्स ऑफ पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिफरेंट रीजन्स। लोग विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। वे अलग स्थानों पर माल भी भेजते। दे आल्सो सेंड गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ये वे लोग अलग स्थानों पर माल भी भेजते हैं। द मूवमेंट पीपल and good from one place to another is called transportation. What is transportation? The movement of people and goods from one place to another is called transportation. What is means of communication? Yesterday मैंने कहा to convey out messages to other is known as communication. हमारे संदेशों को दूसरे तक पहुंचने के लिए संचार के रूप में जाना जाता है। Communication means exchange of information. We can often send our messages to our friends and relatives living near or far places. The act of sending and receiving messages is called communication, or to convey our messages to other is known as communication. हमारे संदेशों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए संचार के रूप में जाना जाता है। ओके, what is transportation? Transportation means the movement of people and goods from one place to another is known as transportation. We can travel to or transport goods means of rail and road, air, water transport. अपन जाने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं रेल, रोड एंड एयरवेज एंड वाटरवेज एक्सेट्रा। व्हीकल यूज ट्रैवलिंग में भी इधर पर्सनल और पब्लिक। हम खुद अपने पास खुद गाड़ी है तो खुद गाड़ी भी अपन इस्तेमाल कर सकता है। वी रिक्वायर ए टिकट टू ट्रैवल इन ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी में जाने के लिए अपन जरूर टिकट का आवश्यकता होती है। ए टिकट इज ए पास गिवन ए ट्रैवलर आफ्टर ही शी पेज और सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। The amount of paid is known as fare of that journey. Traveling from one country to another requires a passport and visa along with a ticket. एक टिकट एक यात्री को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के बाद दिया जाता है। अमाउंट की गई राशि को उस यात्रा के लिए किराया के रूप में जाना जाता है। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए टिकट के साथ साथ पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होती है। दिस अमाउंट पेड नॉन एज फेयर ऑफ दैट जर्नी। ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर रिक्वायर्ड ए पासपोर्ट एंड वीज़ा अलॉन्ग विद ए टिकट। एक देश से दूसरे देश के जाने के लिए अपन टिकट के साथ साथ पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रैफिक sign. Various vehicles such as bicycle, auto show, bus, car और trucks play on road. रास्ता में अलग अलग तरीके से गाड़ी अपन देख सकता है। Therefore, it is essential that some rules regulation are followed the controlling the traffic. अपन रास्ता में गाड़ी चलेगा तो रास्ता का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन अपन पालन करना जरूरी है। And traffic sign are displayed on roads for the safety convenience of people. The traffic sign divided into three categories. How many categories are divided into the signs? There are three types of categories: regulatory signs, warning signs, and informative sign. नियामक संकेत and चेतावनी संकेत and सूचनात्मक संकेत। ओके, अपन पढ़ेंगे रेगुलेटरी साइन। ओके, दिस साइन regulates discipline the traffic on road. They are meant for the safety of the road usage. Drivers must obey the sign. The traffic police has the right to find or take action against driver who does not obey this signal. Okay, ये संकेत सड़क पर यातायात को नियंत्रित और अनुशासित करते हैं। वे सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए होते हैं। ओके,
ड्राइवर मस्ट ओबे द सिग्नल, ड्राइवर जरूरी सिग्नल फॉलो करना अनिवार्य है। द ट्रैफिक पुलिस हैज़ राइट टू फाइन, अगर न माने तो ड्राइवर को क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। द ड्राइवर डज नॉट ओबे द दिस साइन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्राइवर मस्ट ओबे दिस साइन, द ट्रैफिक पुलिस राइट द फाइन टेक एक्शन अगेंस्ट, मतलब ड्राइवर को इन नियमों का पालन करना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस को इन नियमों का न मानने वाले ड्राइवर के खिलाफ जुर्माना या कार्रवाई करने की अधिकार है ट्रैफिक पुलिस को। देखो लेस्ट सम एग्जाम्पल रेगुलेटरी साइंस आर नो पार्किंग, इसमें पार्किंग का बिल्कुल पार्किंग नहीं करना, नो यू टर्न, नो एंट्री, नो राइट टर्न, नो हॉर्न प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वार्निंग साइन, चेतावनी संकेत। ओके, दिस साइंस वार्न ड्राइवर अबाउट डेंजर ऑन द रोड अहेड, they also provide information about what coming on the road next. This information helps the driver to be careful while driving through that area. This sign mean by for the safety of the road users. Okay, ये संकेत ये चालक को सड़क पर एक खतरे के बारे में वार्निंग देते हैं। वे एक भी जानकारी होते हैं कि आगे सड़क पर क्या हो रहा है, अबाउट कमिंग द रेस्ट रोड। एक जानकारी ड्राइवर को उस क्षेत्र से वाहन चलाते समय सावधान रहने में मदद करती है। ये संकेत सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा के लिए है। ओके, नेक्स्ट सिग्नल्स आर स्लिपरी रोड। स्लिपरी रोड मीन्स मतलब फिसलाऊ रोड है, इसलिए धीरे गाड़ी चलाना है। लूस ग्रेवल मीन्स खुली बजरी है। एंड रेलवे क्रॉसिंग मीन्स फाटक सामने है, स्कूल भी सामने है। एंड मैन एट वर्क, रास्ता साइड में रास्ता में मतलब काम कर रहा है, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चलना है ड्राइवर को। इंफॉर्मेशन साइन, this signals guide driver to reach certain places. They are mainly meant for drivers who are unfamiliar with area. The sign information to such drivers regarding to facilities available nearby. These are some example informative sign. ये संकेत कुछ स्थानों तक पहुंचने के लिए एक ड्राइवर का मार्गदर्शन करता है। वे मुख्य रूप से उन चालकों के लिए होता है जो क्षेत्र से अपरिचित है। ये संकेत ऐसा ड्राइवर का आसपास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हैं। ये इन्फॉर्मेटिव संकेतों का उदाहरण है कि टेलीफोन, पब्लिक टेलीफोन एंड पेट्रोल पंप सामने है, हॉस्पिटल पास है, एंड ईटिंग प्लेस एंड लाइट रिफ्रेशमेंट। ओके, अगर गाड़ी में अपन पेट्रोल खत्म हो गया तो अपन पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल डाल सकता है। अगर किसी को फ़ोन की ज़रूरत है अपन पब्लिक टेलीफोन जाके इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स, रास्ता में बीच में कुछ एक्सीडेंट हुए तो फर्स्ट एड बॉक्स मिल सकता है। हॉस्पिटल पास है, ईटिंग रेस्टोरेंट एंड होटल भी सामने है। ओके, इफ ऑल ड्राइवर्स स्ट्रिक्टली follow the traffic rules and sign or roads, there will be less number of road accident। अब मतलब रास्ता का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा तो एक्सीडेंट का अपन दूर कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, योर लेसन 5 इज कंप्लीटेड। थैंक यू।